செம்மையா இருக்குங்க. வேலண்டைன்ஸ் டே நம்ம தாஜ்மஹால் பார்க்க கிளம்பி இருக்கோம். தமிழ் சரியா? தமிழ் தெரியுமா? இல்ல வேண்டாம். கொஞ்சம் 11 + 11 22. एक्चुअली 400 ईयर्स पहले कोई कैलकुलेटर कैलेंडर वगैरह नहीं हुआ करता. 30 feet மேல இருக்கிறது. மும்தாஜுக்கு ஒரு ஷாஜகானுக்கு ஒரு வைஃப் இல்லையா? உங்களோட அன்புக்கு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம கூட யாருக்காங்க சமீர் ப்ரோ. சமீர் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் ப்ரோ. சோ நம்ம இன்னைக்கு எங்க கிளம்பிட்டோம் ப்ரோ? நம்ம இங்க தாஜ்மஹால் கிளம்பிட்டோம். சோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான நாள். என்ன நாள் பாத்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே. நம்ம தாஜ்மஹால் பார்க்க கிளம்பி இருக்கோம். அது நம்மளா கிளம்பல, அது ஏதாச்சும் அமைஞ்சது, எங்களுக்கே தெரியாது. ஆக்சுவலி நாங்க கோஇன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அப்பதான் சமீர் ப்ரோ சொன்னாரு இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே, அது அன்னைக்கு அதுவும் தாஜ்மஹால் போறோம்ட்டு. அது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அதுமா நம்ம தாஜ்மஹால் செலிப்ரேட் பண்ண போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம வேலண்டைன்ஸ் டே எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணதில்லை. பட் தாஜ்மஹால் போறோன்றது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மூமெண்டா இருக்கும். இந்த நாள் மறக்கவே முடியாதா இருக்கும். இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம் பார்த்தா 8 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்கோம். ஸோ எல்லாரும் கிளம்பிட்டோம். நம்ம கூட இன்னும் ஒரு 3 ஸ்டண்ட் ரைடர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அபி ப்ரோ அண்ட் சந்தேஷ் ப்ரோ அண்ட் சாம் ப்ரோ இல்ல, அவர் பேரு மறந்துட்டேன், அனிஷ் ப்ரோ. ஸோ எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் போறோம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல தான் ஸ்டே பண்ணிருந்தோம். ஸோ இந்த சிட்டி எனக்கு ஃபன் பண்ண போறோம். செம ஃபன் பண்ண போறோம். ஜாலியா இருக்க போது. அண்ட் சின்ன வயசுல சினிமால மட்டுமே பார்த்துருக்கேங்க தாஜ்மஹாலை. நேர்ல பார்த்ததே இல்லை. ரொம்ப நாள் ஆசை போகணும்ட்டு இன்னைக்கு கிளம்பியாச்சு. யாருக்குமே தெரியாது நான் போறேன்றது. அம்மா கிட்ட கூட சொல்லவே இல்லை நான் போறேன்ட்டு. பட் இன்னைக்கு நான் போயிட்டு அங்கிருந்து அம்மாக்கு வீடியோ கால் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அண்ட் சமீபம் டவுன்லோட் பண்ணிடலாமா? இன்னைக்கு நம்ம பாம் எடுக்க போறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ஐ அம் குட் ப்ரோ. யூ? ஐ அம் ஆல்சோ குட் ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்? தாஜ்மஹால் இல்லை, நம்ம தாஜ்மஹால் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம். விட்டா திண்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட். பிரேக்ஃபாஸ்ட் திண்டி சாப்பிடுவோம். சரி, நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நம்ம ஹிட்டாவான்ற இடத்துல இருந்து நம்ம தாஜ்மஹால் கிளம்பிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் பஸ்ல. ஹிட்டாவா இல்லை, ஹிட்டான்ற இடத்துல இருந்து தாஜ்மஹால் போயிட்டு இருக்கோம். 80 கிலோமீட்டர்ஸாவே கிட்ட வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஆமா, ஹை புரோட்டீன் ஃபுட். நம்ம தாஜ்மஹால் கிட்ட இருக்கோம். செம்ம எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம தாஜ்மஹால் பார்க்க போறோம். அது செம்ம ஸ்பெஷல் என்னன்னா இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே. ஆமா, சும்மா ரொம்ப கப்பல்ஸா இருக்காங்க. ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கு. ஆல் பாய்ஸ் ஆல் ஃபன்னி. செம கூட்டம் நினைக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஃபுல்லா பஸ் வண்டிமா இருக்கு. சின்ன நாங்க ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி வந்தோம். பஸ்ல இருந்து இறங்கி அந்த பஸ்ல சரியான தூக்குங்க. நைட்டு ஃபுல்லா சுத்தமா தூங்க இல்லையா, அதனால பஸ்ல தூங்கிட்டே வந்துட்டு இங்க வந்தோடனே இப்ப சாட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கீங்க. உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷூ கவர் வாங்கணுமா. ஏன்னா இந்த ஷூ கவர் எல்லாம் உள்ள அலோட் பண்ண மாட்டாங்களாம். ஸோ அந்த ஷூ கவர் வாங்க சொன்னாங்க. ஒரு ஷூ கவர் வாங்கிட்டு சரி இப்போ ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம், பசிக்குது, சேட்டை ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பசங்க சொல்றாங்க. சாப்பிட்டு அப்படியே உள்ள போயிட்டு கண்டினியூ பண்றேங்க. அதே மாதிரி பேக்லாம் லாக்கர்ல வைக்கணுமா. ஸோ எல்லாத்தையும் லாக்கர்ல வச்சுட்டு ஃபோன் அலோடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எடுத்துட்டு போயிட்டு ब्लॉग पண்றேன். आपके मोबाइल से आप फोटोग्राफी भी करेंगे। पूरा टूर होने के बाद यहां लाके ड्रॉप करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी पे करना। हां 17 इयर्स कंस्ट्रक्शन ताजमहल। ओ साइड पे
ये ताजमहल வந்துட்டோம். वेस्ट गेट और यस दैट इज वेस्ट गेट. उसका ठीक सामने दिख रहा है दैट इज ईस्ट गेट. उससे वीआईपी गेट भी बोलते हैं. वीआईपी गेट इसलिए बोलते हैं जितना भी पीएम सीएम सेलिब्रिटी वो सब लोग उधर से एंट्री लेते हैं, उधर से एग्जिट लेते हैं. यू अंडरस्टैंड ब्रदर? ओके थर्ड गेट साउथ गेट. साउथ गेट जिससे लेबर कॉलोनी गेट कहते हैं. लेबर कॉलोनी गेट इसलिए कहता है शाहजहां के जो 20,000 वर्कर थे जिनने ताजमहल बिल्ड किया वो सब लोग इसी गेट के बाहर रहते हैं. आज भी जो उनका जनरेशन है वो इसी गेट के बाहर रहता है, सेम वर्क करता है जो ताजमहल में हुआ. फोर्थ गेट नॉर्थ गेट. इसको रॉयल गेट कहते हैं. रॉयल गेट इसलिए कहते हैं जो शाहजहां के गेस्ट आते हैं वो सब लोग इधर से एंट्री लेते हैं, इधर से ही एग्जिट. और जो 20,000 वर्कर रहते हैं उनके लिए इसके राइट साइड में एक स्मॉल सा गेट बनाया जहाँ से वो 20,000 वर्कर एंट्री और एग्जिट लेते हैं एवरी डे. इस गेट का हाइट है 105 फीट. इस गेट के मिडल में स्मॉल डॉम दिख रहे हैं आप. काउंट करते हैं कितने डॉम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. काउंट अगेन ब्रदर. देयर इज 11. 11 ओके. Okay, 11 this side, 11 behind side. 11 plus 11 22. एक्चुअली 400 ईयर्स पहले कोई कैलकुलेटर कैलेंडर वगैरह नहीं हुआ करते थे. मुस्लिम कैलेंडर मून के हिसाब से जब 1 ईयर कंप्लीट होता 1 डॉम रखते हैं, सेकंड ईयर कंप्लीट होता सेकंड डॉम रखते हैं. ऐसे ही जब 22 ईयर्स कंप्लीट हुए तो वहाँ पे 22 डॉम्स रखे. ये सिंबल आता है कि ताजमहल को 22 ईयर्स लगे बनने में. जैसा 20,000 वर्कर ने मिलकर बनाया. 1631 में स्टार्ट हुआ ताजमहल और 1653 में कंप्लीट हो गया. ये याद रखते हैं, इससे आपको एक सिंबल बताते हो. गूगल में दूसरा है यही आएगा. ये रूम्स दिख रहे हैं आप, स्मॉल स्मॉल रूम्स. ये यहाँ पे 210 रूम्स है. जो मुगल टाइम में मीना बाजार लगा करता था, जो एक्चुअल में रियल मीना बाजार था वो इधर लगता था. जब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ताजमहल आया तो मीना बाजार यहाँ से हटा के इस गेट के बाहर किया, लेबर कॉलोनी गेट के बाहर. शाहजहां की 3 वाइफ थी. फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड संदली बेगम, थर्ड वन मुमताज. उसके बारे में सबको मालूम. जब उनका फर्स्ट वाइफ का डेथ हुआ तो उनका मकबरा वेस्ट गेट के लेफ्ट साइड में बनाया. जो डॉम दिखाया उस डॉम के नीचे उनका मकबरा बनाया और उनके नाम के ऊपर उस गेट का नाम रखा गया, फतेहपुरी गेट. ऐसे जब उनका सेकंड वाइफ का डेथ हुआ तो उनका मकबरा ईस्ट गेट के राइट साइड में बनाया और उनके नाम के ऊपर उस गेट का नाम रखा गया, संदली गेट. और इन दोनों वाइफों के नाम से एक मॉस्क बनवाई गई गेट के बाहर अपोजिट साइड दिखाता है. मुमताज गोरू शाहजहां गोरू वाइफ இல்லையா? अरे सब सीरियसली समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ब्रदर. अरे समझ नहीं. गेट के बाहर वो रेड वाला डॉम दिखते हैं, वो उनका फर्स्ट वाइफ के नाम से बनाया मॉस्क, फतेहपुरी मॉस्क. ಮೂನ್ ವೈಫಾ? राइट साइड में ब्लैक डॉम देखते हो उधर, स्मॉल डॉम, वो उनका सेकंड वाइफ के नाम से बनाया हुआ मॉस्क, संदली मॉस्क. इन दोनों मॉस्क में आज भी 5 टाइम्स का प्रे होता है. जो यहाँ का लोकल मुस्लिम रहता है वो प्रे करता है. मुस्लिम कैलेंडर मून के हिसाब से जब 1 ईयर कंप्लीट होता 1 डॉम रखते हैं, सेकंड ईयर कंप्लीट होता सेकंड डॉम रखते हैं. ऐसे ही जब 22 ईयर्स कंप्लीट हुए तो वहाँ पे 22 डॉम्स रखे. ये सिंबल आता है कि ताजमहल को 22 ईयर्स लगे बनने में. जैसा 20,000 वर्कर ने मिलकर बनाया. 1631 में स्टार्ट हुआ ताजमहल और 1653 में कंप्लीट हो गया. ये याद रखते हैं, इससे आपको एक सिंबल बताते हो. गूगल में दूसरा है. यही आएगा. ये रूम्स दिख रहे हैं आप, स्मॉल स्मॉल रूम्स. ये यहाँ पे 210 रूम्स है. जो मुगल टाइम में मीना बाजार लगा करता था, जो एक्चुअल में रियल मीना बाजार था वो इधर लगता था. जब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ताजमहल आया तो मीना बाजार यहाँ से हटा के इस गेट के बाहर किया, लेबर कॉलोनी गेट के बाहर. शाहजहां की 3 वाइफ थी. फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड संदली बेगम, थर्ड वन मुमताज. उसके बारे में सबको मालूम. जब उनका फर्स्ट वाइफ का डेथ हुआ तो उनका मकबरा वेस्ट गेट के लेफ्ट साइड में बनाया. जो डॉम दिखाया उस डॉम के नीचे उनका मकबरा बनाया और उनके नाम के ऊपर उस गेट का नाम रखा गया, फतेहपुरी गेट. ऐसे जब उनका सेकंड वाइफ का डेथ हुआ तो उनका मकबरा ईस्ट गेट के राइट साइड में बनाया और उनके नाम के ऊपर उस गेट का नाम रखा गया, संदली गेट. और इन दोनों वाइफों के नाम से एक मॉस्क बनवाई गई गेट के बाहर अपोजिट साइड दिखाता है. मुमताज गोरू शाहजहां गोरू वाइफ இல்லையா?
अरे सब सीरियसली समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ब्रदर आ रहा है समझ गेट के बाहर वो रेड वाला डॉम देखते हैं, वो उनका फर्स्ट वाइफ के नाम से बनाया मॉस्क, फतेहपुरी मॉस्क। ಮೂನ್ ವೈಫಾ राइट साइड में ब्लैक डॉम देखते हो उधर, स्मॉल डॉम, वो उनका सेकंड वाइफ के नाम से बनाया हुआ मॉस्क, संतली मॉस्क। इन दोनों मॉस्क में आज भी 5 टाइम्स का प्रे होता है। जो यहाँ का लोकल मुस्लिम रहता है वो प्रे करता है। ಇದು ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್, ಮೈ ನೋ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಸಾರಿ, ಉಬೇಸ್. myself I am Uday Chandran. I am from Chennai, Tamil Nadu. Hi. தமிழ் தெரியா? தமிழ் தெரியுமா? இல்ல வேண்டாம். கொஞ்சம் தெரியுமா? 2-3 words. Okay. हाय, நல்லா இருக்கே. अभी जैसा हम इस गेट से एंट्री लेते हैं, ताजमहल स्मॉल होता जाता है और दूर जाता है। ऐसा लगता है कि वॉक कर रहा है ताजमहल दूर हमसे देखते हुए चलते हैं। ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂದಿದ್ದನು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು ದೂರ ಹೋಗೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ என்ன சொல்லாரு ப்ரோ? அது நீங்க இப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தா தாஜ்மஹால் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து தாஜ்மஹாலை பார்த்துக்கிட்டே நடந்தோம்னா அது பின்னாடி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இருங்க. ஸோ அது தெரிஞ்சு பாருங்க, தாஜ்மஹால் வந்துட்டோம் ஃபைனலாக. வாவ், செம்மையா இருக்குங்க. இட்ஸ் ஓகே. तो हल्का सा बैंड नजर आता है अपोजिट साइड में, या 90 डिग्री पे अपोजिट साइड में असली बैंड है। इन फ्यूचर कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये पिलर मैन बिल्डिंग पे ना गिरते हुए अपोजिट साइड में गिरे, क्योंकि ये पिलर दोबारा बिल्ड किए जा सकते हैं। जो मिडिल वाला बिल्डिंग है वो दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पिलर को 90 डिग्री पे बैंड किया गया अपोजिट साइड में बिल्डिंग से। सबसे टॉप में वो ब्रास का मीनार देखते हैं आप, कितना फीट का होता है? 1 फीट, 2 फीट, 10 फीट। उसका जो एक्चुअल 24 फीट, सीरियसली ओके। जो उसका एक्चुअल हाइट है वो मैं आगे दिखाता क्या हाइट है उसका। ओके, ताजमहल जैसा फ्रंट से दिखते हैं, सेम ऑल साइड से है। ओके, याद है मैंने आपको एक चीज बताता है, ताजमहल कब स्टार्ट हुआ बनना, कब कंप्लीट हुआ? 22 ईयर्स लगा ताजमहल को बनने में। 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 में कंप्लीट हुआ ताजमहल बनके। जब 1653 में ताजमहल कंप्लीट हुआ तो एक सिंबल बनाया शाहजहां ने के लोगों को मेमोराइज है कि 1653 में ताजमहल कंप्लीट हुआ है। ये गार्डन देख रहे हैं, ये एक गार्डन दिस कॉर्नर से दिस कॉर्नर तक है, और 8 ही गार्डन दूसरा वाला साइड में। 8 + 8 16। ये फाउंटेन देख रहे हैं मिडल में, ये टोटल 53 फाउंटेन। 16 गार्डन, 53 फाउंटेन, 1653 ये सिंबल बनाया शाहजहां ने, तो लोगों को मेमोराइज है 1653 में कंप्लीट हुआ। தமிழ்காரங்களா தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்திருக்காங்களா, ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க, எடுத்து கொடுத்தா ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணாங்க. அண்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே போயிட்டாங்க தெரியுது, அது இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ நம்ம தாஜ்மஹாலில் இருக்கோம். राज का मीनार देखिए, उसका जो एक्चुअल हाइट है 30 फीट। 30 फीट वो 30 ஃபீட் அங்கே மேலே இருக்கிறது பக்காவா ஃபேக். என்ன ரியல்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே ஒர்க்கர்ஸோட அக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டா, ஓகே உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ராஜா மாதிரி வாழ்றதுக்கு நான் செட் பண்ணி கொடுப்பேன். இதுக்கு மேல நீ எங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது தொட போகிறோம். கல்லு தாங்கம்மா. इसका फुल नेम है मुमताज महल।